students, today we are going to discuss another important topic of this chapter, that is double circulation. You have also heard the name double circulation in your 10th class, and again I am repeating it for your convenience, that what is double circulation. Earlier in this chapter I have also told you about the single circulation which is present into fishes and the vertebrates. Remember these things? If you forget, please go to your notes or you can say video and again watch it. You will find the definition of the single circulation, but still I am going to repeat it for you, that in single circulation blood passes only once through the heart to supply once to the body. That means blood हार्ट में से होकर केवल एक बार ही जाता है, उसके पहले कि वो बॉडी में अपना ब्लड जा कर के प्योर वाला दे. जैसे कि फिशेस के केस में हमने पढ़ा था कि फिशेस के केस में डायरेक्टली गिल्स में जाता है और गिल्स से वो पूरी बॉडी में जाकर वापस हार्ट में आ जाता है. दैट इज सिंगल सर्कुलेशन. नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द double circulation. Double circulation is basically found in if I write it here for you, like it is found in amphibians, it is found in reptiles, it is found in birds, and also it is found in mammals. So these are the four classes, or you can say class: amphibia, reptilia, birds and mammals, in which double circulation is found. And what do you mean by double circulation? As I told you, that means blood passes two times, that means twice through the heart to supply once to the body. That means आपकी बॉडी में ब्लड जाने से पहले 2 टाइम्स आपके हार्ट से होकर के जाता है, उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट विच आई हैव drawn for you, we will easily understand the process of double circulation. Now in double circulation, as you all know that our heart is 4 chambered, है ना, ये हम ऐसे बनाया करते थे. तो this is 4 chamber, upper 2 are atrium, lower 2 are the ventricle. And what I am saying right now, that ब्लड पास ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी. आपकी बॉडी में एक बार जाने के लिए इसको 2 बार आपके हार्ट से होकर निकलना पड़ता है. और वो कैसे? बिल्कुल शॉर्ट, वेरी क्विक मैं आपको समझा रही हूँ. दिस इज़ राइट साइड, सपोज दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड, ठीक है. तो यू नो दैट राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू द राइट एट्रियम, देन गोज टू द राइट वेंट्रिकल, देन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इट रीचेज टू द लंग्स. ये लंग्स के पास जाएगा. देन लंग्स अगेन प्यूरिफाई इट, दैट मीन्स दे मिक्स ऑक्सीजन इनटू इट एंड अगेन दे रिटर्न बैक टू द लेफ्ट एट्रियम. तो ये लेफ्ट में छोड़ देंगे एंड लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ग्रेट आर्टरी एंड देन बॉडी पार्ट्स में जाता है. तो here you can see easily that blood has to pass twice, once in the right atrium and second time again it comes into the left atrium and फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो 2 बार आया ना ब्लड आपके हार्ट में, एक बार आपकी बॉडी को मिलने के लिए. तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. एंड व्हाट इज़ हेयर गिवन इन द डायग्राम, इफ़ यू कैन सी इट in the diagram, that I have divided it with the line, and here I have written pulmonary circulation and here I have written systemic circulation. So that means we can divide it into 2 parts. Don't worry, I will give you the screenshot of this the diagram so that you can see it clearly if you can't see it here. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. ये लोअर वन, नीचे वाले को मैं बता रही हूँ आपको. सिस्टमिक, क्योंकि ग्रेटर सर्कुलेशन है, ये ज़्यादा बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, तो इसको ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन भी इसको हम कहते हैं. And if you see it clearly, I remove the ink so that you can see it now. And if you try to see it in the systemic circulation or greater circulation, what happens, that blood circulation starts from the left ventricle. And where is the left ventricle? Here is the left ventricle. This is left ventricle shown in the diagram. Though the blood circulation completes from left ventricle to right auricle. Where is the right auricle? Here is the right auricle. That means ये पूरा जो रास्ता है, that is called a systemic circulation. So what happens in it? If you see in this flow chart also, here is the left ventricle pumps oxygen. ये जो left ventricle है, तो it pumps, left ventricle pumps oxygenated blood into the systemic aorta, which supplies to the body organs. Obviously left auricle में, left ventricle में है, तो that means ये clean blood होगा ना, clear blood होगा. clean means oxygenated blood. तो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्स इनटू द, आप सिस्टमिक एओर्टा भी बोल सकते हो, आप ग्रेट आर्टरी भी बोल सकते हो, आप एओर्टा भी बोल सकते हो.
तो ये वहाँ पर पंप करेगा एंड आपको पता है कि इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी। जब ऑक्सीजन मिक्स है तो कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कराएगा बॉडी में, तो डिस्ट्रीब्यूट कराया ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दीज ऑर्गन इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम। जैसे कि आपको पता है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा इसके अंदर तो वो कहाँ जाएगा, वो वापस आएगा राइट एट्रियम में। एंड राइट एट्रियम में कौन लेकर के यहाँ पर आएगा राइट एट्रियम में वापस, और कौन लेकर आएंगी, ग्रेट वेन्स लेकर के आएंगी। इफ़ यू ओपन द डायग्राम वेयर आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस लेक्चर, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये राइट एट्रियम में आ गया एंड व्हाट राइट एट्रियम विल डू, इट पंप्स दिस ब्लड टू द लंग्स, सॉरी राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा ना, ये राइट एट्रियम है तो ये यहाँ पर दे देंगे, राइट वेंट्रिकल में दे देंगे। तो यहाँ तक का जो पाथवे है दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसने कहाँ छोड़ा, वो उसका काम है, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द क्लीन ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो मैं क्लीन बोल रही हूँ उसका मतलब ऑक्सीजनेटेड, आप समझो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जर्नी है ये पूरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, बॉडी पार्ट्स को हमने दिया और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया एंड थ्रू द लार्जर वेन्स वी रिटर्न बैक इनटू द राइट वेंट्रिकल में हमने इसको छोड़ दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द systemic circulation, and systemic circulation supplies useful material like nutrients, oxygens, hormones to the various parts of bodies and tissues, and also collects harmful substances from there like CO2, nitrogen and waste, and from there they eliminate, है ना। तो जहाँ पर छोड़ कर आएगा वहाँ से लेकर भी आ जाता है उसी के साथ साथ, है ना, कोई अलग से तो लेने नहीं जाएगा। यही गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे आया एंड CO2 वाला ब्लड वापस ले आया। नाउ कम टू द, अगेन आई रिमूव द इंक एंड कम टू द दिस वाला, इसके लिए मैं बात कर रही हूँ, दैट मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यू कॉल दैट लेसर सर्कुलेशन, क्योंकि इसका काम ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इन इट ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। अब राइट वेंट्रिकल कहाँ पर मैं छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था ना, तो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम। वेयर इज द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ये वाला यहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम यहाँ तक, ये पूरा रास्ता जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये इसका है। तो व्हाट हैपन्स इन इट, mostly as I have told you that in this blood completed circulation from right ventricle to left auricle through the lungs, है ना, बीच में देखिए यहाँ पे lungs लिखा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो राइट वेंट्रिकल है आपको पता है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसको ऑक्सीजनेशन के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, लंग्स के पास आना पड़ेगा, बिकॉज लंग्स हैव द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है इसमें, एंड देन जब ऑक्सीजन मिक्स कर दी गई देन इट अगेंस्ट कम टू द लेफ्ट एट्रियम, तो इसको आराम से लेफ्ट एट्रियम में छोड़ दिया जाता है। फॉर व्हाट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको ब्लड को पंप करेगा, लेफ्ट ऑरिकल जो है ना, लेफ्ट जो ऑरिकल है वो ब्लड उसने लिया, लंग्स में हमने प्योरीफाई कर दिया और ब्लड को हमने लेफ्ट ऑरिकल में छोड़ दिया, फिर लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो हमने पहले भी पढ़ा था। इट इज़ वेरी सिंपल, नथिंग इज न्यू इन इट, एंड पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज दिस ब्लड टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स is returned to the left atrium by the pulmonary veins so that left auricle pumps the blood to the left ventricle। तो ये पूरा जो पाथवे है, जो पूरा रास्ता है सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन का, ये आपको इस फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड टिल नाउ द फंक्शनिंग ऑफ और एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट राइट नाउ, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, क्योंकि बेटा बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इफ़ यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो आपको मैंने पहले भी बताया है और फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ सिर्फ आपको इनके वर्ड्स एंड नेम्स याद रखने हैं। तो दिस इज़ सपोज ट्राइकस्पिड वेल्व, दिस इज़ बाइकस्पिड वेल्व, एंड दीज आर द ग्रेट वेन्स जिनको हम लोग बोलते हैं वेना केवा। यू कैन ऑल्सो से, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर द नेम स्टूडेंट्स ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वॉट आई एम सेइंग। अगर आपको नाम ही नहीं याद है बच्चों तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या कहाँ मैं बोल रही हूँ। एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड कंसिडर, मैं कंसिडर कर रही हूँ इसको लेफ्ट साइड, सॉरी ये तो इरेज हो गया पूरा, अगेन आई विल ड्रॉ इट फॉर यू, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, आई विल ड्रॉ इट अगेन, है ना। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक और हार्ट का स्ट्रक्चर, एंड लाइक दिस
यहाँ पर हमने बना लिया बाइकस्पिड वेल्व एंड दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व। क्योंकि ये मेरे राइट साइड में है तो आई रिटन इज राइट एंड आई हैव रिटन इज लेफ्ट साइड, है ना, तो राइट एंड लेफ्ट साइड हो गया। ये एट्रियम है, एज यू ऑल नो दैट दिस इज एट्रियम, दिस इज वेंट्रिकल, एंड यू ऑल नो दैट राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होकर के कैसा ब्लड होता है, CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड लेफ्ट में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये सब लाने का कौन करता है, ग्रेट वेन्स, और यू कैन से वेना केवा, इनको आप वेना केवा बोल सकते हैं, ग्रेट वेन्स बोल सकते हैं। एंड हेयर राइट साइड में यहाँ पर ये जो आर्टरी लगी हुई है दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस आर्टरी इज़ नोन एज सिस्टमिक आर्च, और जिसको मैंने आपको कहा था ग्रेट आर्टरी आप कह सकते हो, वो है ये। तो सिंपल थिंग इज़, आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ग्रेट वेन्स जो हैं वो ब्लड लेकर के आई यहाँ पर। कहाँ से आया ये वाला ब्लड, दिस ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ में यूज़ होने के बाद जो ब्लड आया तो ये कम्स इनटू द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल, दैट देन इट गोज़ इनटू द वेंट्रिकल, एंड देन फ्रॉम वेंट्रिकल इट गोज़ इनटू द जो इसके साइड में पाई जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी है, एंड देन पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ छोड़ेगी, लंग्स में, LUNGS, लंग्स में इसको छोड़ेगी, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहीं पे मिलेगी, ऑक्सीजनेशन हो गया है ना ब्लड का। देन अगेन दिस ब्लड गोज़ इनटू द लेफ्ट साइड में, कौन ले जाएंगे, अगेन वेन्स हैं ये, तो वेन्स ही इसको ले जाएंगे, एंड वेन्स कहाँ छोड़ेंगे, वेन्स इसको छोड़ेंगे वापस से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से थ्रू द वेल्व्स पास होगा लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में, एंड फ्रॉम हियर ग्रेट आर्टरी से कहाँ पर जाएगा, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर है। तो दीज थिंग्स जब आप पढ़ेंगे डायग्राम्स के थ्रू भी पढ़ सकते हो आप, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि ये हम जो भी लास्ट में हमने बात की कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये कहाँ पर लाए जाते हैं, ये रिस्पेक्टिव ऑरिकल एंड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में अपने लाए जाते हैं। बिकॉज जो हम इसमें पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन में, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब ही है कि वी हैव सेपरेटेड द ब्लड, दैट मीन्स वी सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे, जैसे यहाँ पर अब आपने देखा इधर राइट साइड में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेयर एज इन द लेफ्ट साइड देयर इज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दो चीज़ें हैं ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा टॉपिक, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई एम कवरिंग नाउ स्मॉल टॉपिक सो दैट you can easily learn it and make the notes for it. In next topic we will discuss a few other things. Till then you keep revising the topic.